Sujit, how are you? Hello, sir. I am doing great, sir. Yeah, so Sujit, you are doing wonderfully good in South Korea, beautiful small country, and you're doing your PhD in one of the very good universities there in chemistry. I want to interact with you and I want to know more about your background, about your journey, Sujit. So, your qualification background and everything back home and then in South Korea. Later on, I'll be discussing with you, like, what kind of destination South Korea is for Indian students. And I'll be discussing not only for chemistry or basic sciences students, but overall Indian students. So I'll try to take a brief idea from you related to South Korea because there are so many students from India who look forward to join universities in these countries also. So Yes, I sir. start with your background, Sujit. Please tell us which part of India you are from and about your initial background, like qualification background, your Yeah. graduation, undergrad, grad, and all this. Yeah. Yes, sir. So, hi everyone. My name is Sujit Ramchandra Deshmukh. Basically, I am from Maharashtra. So, I did my masters in chemistry, in organic chemistry. My university name is Karmveer Bhaurao Patil University, Satara. It is located in Satara district. Also, I had done my bachelor's degree in again in Sangli. My university name is Shivaji University, and college name is Dr. Patangura Kadam Mahavidyalaya Raman Nagar. So then I am doing now my PhD in organic photofunctional material lab, where Hmm. we can synthesis organic molecule for material synthesis for design electronic devices. Yes, sir. Okay, so Sujit, back home, I'll take you back to India. And at what stage of your entire academic journey you decided कि मेरे को PhD करनी है और बाहर से PhD करनी है? या तो मैंने मास्टर्स में ही तय कर लिया था कि मुझे पीएचडी करनी है। जो मास्टर्स में रिसर्च कर रहा था प्राइमरी, तब मैं मास्टर्स में रिसर्च करते वक्त मेरा एक पब्लिकेशन आ गया था। और उसके साथ मैं इंटर्नशिप भी किया था आईआईटी और एनआईटी में। उस टाइम थोड़ा मुझे आइडिया लगा था कि कैसा होता है रिसर्च और कैसी चीज़ें चलती हैं। तो थोड़ा मेरा आइडिया आ गया था एब्रॉड के बारे में जब मैं आईआईटी के एनआईटी के बच्चे को मिला। पर एक गूजबम्स मेरे था कि मैं तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के कॉलेज में आता हूँ या स्टेट लेवल के आता तो मेरे कैसे होगा। तो मैंने बहुत यूरोपीडिया की वीडियो देखी और जैसे टोएफिल की तैयार की। लाइक दैट वे आई गो थ्रू दिस ऑल द Hmm. जर्नी। Hmm. Okay, Sir Sujit, you said that you are from district or state college, tier 2, tier 3 colleges in India. So ये क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के दिमाग हाँ में होता है हाँ, या कि अगर मैं आईआईटी एनआईटी से नहीं हूं तो शायद मेरे को स्कॉलरशिप या अच्छी यूनिवर्सिटी बाहर अब्रॉड नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। आई वांट माय फ्रेंड टू टेल अबाउट दिस कि स्टूडेंट्स का ये जो मिथ है इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है एंड व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सभी बच्चों के दिल में आता है कि मैं स्टेट्स यूनिवर्सिटी में आता हूँ, मेरा कैसा होगा। वहाँ तो बच्चे आईआईटी वाले जाते हैं, एनआईटी वाले जाते हैं। तो मेरे वक्त ऐसा था कि हमें कोई पता भी नहीं था आईआईटी एनआईटी सर कैसी होती हैं, क्या होता है उसमें। तो बाद बाद में ऐसी सभी चीजें पता चली। इतना कोई डिफिकल्ट ये नहीं है। आप प्राइमरी आपका जो रिसर्च बैकग्राउंड है, थोड़ा रिसर्च आपके प्रोफेसर के आगे साथ में जाके थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आप सभी चीजें पता चलती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, स्टेट लेवल का हो या ग्राउंड लेवल का हो या आईआईटी एनआईटी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से हो, सभी को एडमिशन मिल जाता है। थोड़ी फार कंपिटिटिव होती है पर वो हो जाता है। सभी पेपर वगैरह हो, थोड़ा रिसर्च बैकग्राउंड हो तो हो जाता है। इतना कोई भी डिफिकल्ट चीज नहीं है। So you mentioned a very important point here, that is research आपका अच्छा होना चाहिए, and I'm very sure, Sujit, we will be discussing this, that you must have done your internship very हाँ हाँ हाँ। effectively, and वहीं से research आपका background बना होगा, and that is something which impressed the professors abroad. कोई भी प्रोफेसर वो आपको तभी अपने रिसर्च ग्रुप में लेगा अगर आपका रिसर्च आपने पहले कुछ आपका इंक्लिनेशन शो किया हो जो इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स के थ्रू किया जा सकता है। So my next now discussion point is related to your internships. So please tell us something about the relevance of internship and giving your own example maybe. या जस्ट आई वांट टू कोट दिस। जो मेरा मास्टर्स का जो यूनिवर्सिटी है, मतलब वो यूनिवर्सिटी क्या करती है, साल में या पूरा मास्टर डिग्री में दो दो बार इंटर्नशिप हमारे यहाँ होता है सर। तो Okay. मेरा यूनिवर्सिटी का नाम है कर्मवीर भावराव पाटिल यूनिवर्सिटी सातारा। तो उसमें क्या होता है, दो बार आपको इंटर्नशिप करना होता है।
तो मुझे लगा था कि आईआईटी एनआईटी में हम इंटर्नशिप करेंगे। तो सर मैंने स्टार्ट कैसे किया था, जो मेरे जो जो रिसर्च एरिया मैच हो रहा है ना, थोड़ा मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसके रिगार्डिंग मैंने ईमेल्स ढूंढे थे ओके। आईआईटी के एनआईटी के। तो पहले मैं आईआईटी के ढूंढे, देन हमारे एनआईटी के ढूंढे। आईआईटी में भेज रहा था तो रिस्पांस नहीं आ रहा था, क्योंकि सर मेरा ऐसा सीवी अच्छा नहीं था, ओके। टू बी क्लियर। तो बाद में मेरे एनआईटी से एक मुझे रिस्पांस आ गया, वहाँ थोड़ा ऑर्गेनिक का काम चलता था। तो उसके ओके। बाद मैंने फर्स्ट इंटर्नशिप एनआईटी में की, वहाँ मुझे अच्छा सा रिस्पांस आया। वो प्रोफेसर भी बहुत अच्छे थे। वो उन्होंने बाद में मुझे रिकमेंडेशन दिया और रिकमेंडेशन लेटर उन्हीं से मिले, उनका बहुत इम्पैक्ट हुआ। वही इंटर्नशिप का काम से अभी मुझे पीएचडी मिल गया। वही अरे काम मैंने वंडरफुल। पीछे किया था, वह इतना अच्छा सा काम किया था। वहां से दो पेपर भी बाद में आ गए मेरे, अभी सबमिटेड है अभी तक। उन प्रॉपर से बहुत हेल्प हुई। तो सीधी सी बात है, उनके पोर्टल पे, एनआईटी आईआईटी की पोर्टल पे भी होता है इंटर्नशिप छूट गई है। और सीधी सी बात है, आप मेल थ्रू भी जा सकते हैं। मैंने ऐसे देखा है कि बहुत लोग मेल थ्रू से जाते हैं, मेल करके। ओके। सो मतलब आप एनआईटी आईआईटी के प्रोफेसर जो आपकी फील्ड में काम कर रहे हैं, जो रिसर्च एरिया आपको इंटरेस्ट का है, उससे रिलेटेड आप मेल डालो, रिस्पॉन्स नहीं भी आता है, आ भी जाता है, यू आर अ टिपिकल टिपिकल एग्जांपल कि नहीं भी आया बाद में आ गया, एंड देन यू स्टार्टेड वर्किंग प्रॉपरली। सो ये कितनी ड्यूरेशन की इंटर्नशिप आपकी थी और कितनी होनी चाहिए वैसे इंटर्नशिप का ड्यूरेशन? मिनिमम 2 मंथ्स की होनी चाहिए। 1 मंथ का भी हो जाएगा। तो 1 मंथ की होती है, जो होती हैं रिसर्च ओरिएंटेड, मतलब ओनली आपको रिसर्च स्किल देखने मिलते हैं, मतलब कुछ चीजें चलाने के लिए नहीं मिलती। फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट वगैरह चलने के लिए नहीं मिलते। एक ओरिएंटेशन पीरियड होता है, ओनली क्या चल रहा है ऐसा 1 मंथ का होता है। बेसिकली आप जाओ तो 3 महीने के लिए और 2 महीने के लिए इंटर्नशिप के लिए जाओ। उसके बाद आपके कनेक्शन भी बढ़ जाते हैं, काम भी अच्छे से हो जाता है। ओके। अच्छा सुजीत, आपके आप प्रेजेंटली आप पीएचडी कर रहे हैं, आपने मास्टर्स किया और उसके बाद आप पीएचडी कर रहे हैं साउथ कोरिया में। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि साउथ कोरिया में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होता है, एंड माय क्वेश्चन इज वेरी स्पेसिफिक। डू वी नीड जीआरई, आईलेट्स, टोएफल एंड रिसर्च पब्लिकेशंस टू गेट एडमिशन देयर? सो बेसिकली फॉर पीएचडी सर, दो वे से हम आ सकते हैं। एक है प्रोफेसर वे, लाइक हम डायरेक्ट प्रोफेसर से कांटेक्ट करके हम आ सकते हैं, एक होता है। ओके। और दूसरी चीज होती है स्कॉलरशिप थ्रू, जैसे कि जीकेएस हैं, किस्ट हैं, सैमसंग फेलोशिप है, कीस्ट स्कॉलरशिप है। ये बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। जैसे प्रोफेसर थ्रू आओगे, this is a very clear process. You have to only send the CV, your research background, and interact with the professor. Professor give all the things. मतलब आपको कुछ टोईफेल नहीं लगता, पेपर नहीं हो तो भी चलता है। कोरिया ऐसी, कोरिया यहाँ है कि आपको रिसर्च थोड़ा अच्छा हो, पेपर नहीं है आपके पास तो भी चलता है। मतलब मैंने बहुत ऐसे लड़के देखे उनके साथ सर पेपर भी नहीं था, पर ओके। टोईफेल भी नहीं, जेईई भी नहीं, आपका एडमिशन मिलता है। मैंने बहुत लड़के देखे हुए हैं। तो मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी भी है, जैसे कोरिया के अंदर 100 के अंदर भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज है, इवन दोज यूनिवर्सिटीज डोंट रिक्वायर आईएलटीएस और टोफल, इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? यस यस सर, अभी जो मेरी यूनिवर्सिटी है पुसान नेशनल यूनिवर्सिटी, हाँ यहाँ हाँ। मैं प्रोफेसर फंडेड थ्रू आया हूँ सर। तो इसमें हम्म कैसी चीज़ है कि मैंने वही सेम प्रोसेस किया था। मेरे लिंक्डइन पे अच्छे खासे कनेक्शंस हम्म थे, तभी मुझे हम्म पोजीशन सर पता चली। तो मैंने सीवी अच्छे से बना के ओनली भेज दी, प्रोफेसर से हम्म इंटरेक्ट हुआ, हम्म इंटरव्यू अच्छे से हुआ, देन सभी चीज़ें स्मूथली चली। अभी सभी फेलोशिप प्रोफेसर थ्रू ही आता है, सभी सेटलमेंट हम्म प्रोफेसर थ्रू होता है। मतलब आप प्रोफेसर को मेल डालो और अपना रिसर्च प्रपोजल वगैरह भेजो, और प्रोफेसर अगर यस करता है कि हाँ साहब ठीक है, तो सारा काम हो जाता है। सारा काम हो जाता है सीधी। वंडरफुल। अच्छा, अब सुजीत मेरे को थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन अगर कुछ आप बता पाएं, कि साउथ कोरिया छोटा सा कंट्री है, ब्यूटीफुल कंट्री है, और अनलाइक यूएस, कनाडा और बिग कंट्रीज, साउथ कोरिया इज अ वेरी स्मॉल कंट्री एंड वेरी डेवलप्ड कंट्री ऑल्सो। इसमें यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर, मतलब रैंक अगर देखा जाए तो यूनिवर्सिटीज किस तरह की हैं साउथ कोरिया में? Yeah, okay. Just I want to share my PPT that I will can show या you. या या Just आई give me a minute. परमिट, या प्लीज गो अहेड। The South Korea, sir. या Yes, sir. Yes, sir. I'm audible. यस, यू आर ऑडिबल नाउ। Okay, sir. Sir, इन साउथ कोरिया में बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी जो Maybe ग्लोबली we जो। can show larger version of that, या Sujit, यस yeah, यस सर। या यस, जस्ट अ मिनट। full scale का। या नाउ इट और। ओके।
यस सर, कमलेश। यस सर। सर, यूनिवर्सिटी में बहुत ऐसे हाई क्यूएस रैंक यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे हम हम्म। बात कर सकते हैं कि केस्ट हैं, जैसे कि हम्म। कोरियन एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। या। बाद में है योनसा यूनिवर्सिटी, कोरिया यूनिवर्सिटी, सियोल हम्म। यूनिवर्सिटी। सियोल यूनिवर्सिटी सर बहुत अच्छी है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे पेपर आ जाते हैं, और यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं वो बहुत अच्छे पोस्ट डॉक्टर वगैरह मिल जाते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है। जैसे कि हम्म। मेरी है पीएनयू। पीएनयू भी हम्म। बहुत अच्छी है। जैसे यहाँ हम्म। पब्लिकेशंस, यहाँ हम्म। रिसर्च एरिया, इंस्ट्रूमेंट, हम्म। हाँ इंस्ट्रूमेंटल ऑल द थिंग्स, हम्म। देन फेलोशिप्स यहाँ बहुत अच्छी हम्म। हैं एज हम्म। कम्पेरेटिव टू ऑल दी, एज ऑल कंट्रीज। सो हम्म। साउथ कोरिया में भी अच्छा। ऐसे ऐसे। यस सर, हम्म। गो ओके अहेड। सुजीत, दीज आर 10 यूनिवर्सिटीज एंड पुसान नेशनल यूनिवर्सिटी का रैंक 473 है। यस एक सर। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और वो आई थिंक यू आर द राइट पर्सन आई शुड आस्क दिस क्वेश्चन, कि आईआईटीज की कई बार अगर बात कर लेते हैं, सारी आईआईटीज नहीं लेकिन कुछ एक दो आईआईटीज टॉप 200 के अंदर भी हैं। अब मैं बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स को जानता हूं, मेरे अपने स्टूडेंट्स, जो आईआईटी छोड़ के, जिनका रैंक शायद 200 के अंदर आता है, उनको छोड़ के वो ग्लोबल यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं, जिनका रैंक शायद 400, 300, 200, 500 ऐसा होता है। और वो मेरे को रीजन देते हैं कि क्यों छोड़ के गए हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप पुसान नेशनल यूनिवर्सिटी में अभी बैठे हैं, और आईआईटीज में आपको एडमिशन मिल सकता था, बिकॉज आई नो योर बैकग्राउंड, आप किसी भी आईआईटी में पीएचडी कर सकते थे। कर सकता आप था। लोग छोड़ के पुसान नेशनल यूनिवर्सिटी में हो। प्लीज गिव अस वेरी वेरी ऑनेस्ट आंसर, बिकॉज दिस क्वेश्चन मेनी स्टूडेंट्स कीप आस्किंग कि सर मैं आईआईटी जाऊं या बाहर जाऊं, नथिंग अगेंस्ट आईआईटी, लेकिन मैं आपसे एक ऑनेस्ट अप्रेजल चाहूंगा यहाँ पे, कि क्या ऐसा रीजन है कि स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं वहां इन यूनिवर्सिटीज में। या बेसिकली फर्स्ट रीजन है, मेरा फर्स्ट स्ट्रॉन्ग रीजन है, इन अब्रॉड यू कैन गेट अ फुल्ली फंडेड पीएचडी। फर्स्ट यही है कि फुल्ली हम्म। फंडेड पीएचडी मिलता है, उसमें आपका पूरा एयर एयरलाइंस, पूरा होम हो गया, आपका मील हो गया, आपका पूरा जो स्कॉलरशिप वगैरह है सो फुल्ली फंडेड होता है। बाद में होता है सर रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर। आई हम्म। नो आईआईटी एनआईटी इज वेरी गुड राइट नाउ, हम्म। बट उसकी कंपेरेटिव एब्रॉड में थोड़ा इम्पैक्टफुल होता है। जैसे बात करूं, जैसे हम साउथ कोरिया में पीएचडी कर रहा हूँ, उसको ग्लोबली इंटरेक्शन मिल जाता है। जैसे कि हम्म। हम प्रोफेसर, जैसे अलग कंट्री के भी प्रोफेसर यहाँ होते हैं, उनसे इंटरेक्शन मिल जाता है और कोलेब्रेशन हो जाता है। जैसे कि अलग अलग कंट्री से कोलेब्रेशन होने के बाद हमारे पेपर भी अच्छे अच्छे आ जाते हैं, अच्छे अच्छे हम्म। इम्पैक्ट फैक्टर में आ जाते हैं। जैसे कि हम साउथ कोरिया में देखें सर, यहाँ का रिसर्च ऐसा होता है, जब तक प्रोफेसर उस पर सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि नहीं, रियल रिसर्च जब तक नहीं होता तब तक पब्लिश नहीं करते हैं। थेरो थेरो अच्छे से आपको पॉलिश करेंगे, सभी चीजें प्रोवाइड करेंगे। मैं हम्म। अभी तो मैंने ऐसे भी देखा है कई लैब में, समझ लो आपके यहाँ थोड़ा रिसर्च को कोई चीजें लग रही हैं तो फुल ये फंडेड कर देते हैं। कहाँ भी जाओ, कोरिया में कौन से भी इंस्टीट्यूट में जाओ, वहाँ काम करो, एक दो महीने काम करो, वहां से सीख के आ जाओ, ऐसा भी यहाँ होता है। और बात हम्म। करो तो कोरिया के जो प्रोफेसर होते हैं वो मतलब रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, टाइम टू टाइम उनको बहुत चीजें लगती हैं। तो हम्म। ग्लोबल में कैसा है, टाइम टू टाइम होने के से बच्चे से अच्छे से पेपर निकल आ जाते हैं और अच्छा रिसर्च हो जाता है। और जब रिसर्च हम्म। अच्छा हो जाता है उसके बाद हम्म। पोस्ट डॉक्टरेट हो, आरएनडी हम्म। पोजीशन हो, रिसर्च असिस्टेंट हम्म। पोजीशन हो, जल्दी 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 मिल जाती हैं। इससे कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं होता। वेरी देन ट्रू। जो ग्लोबल डिग्री होती है सर, बहुत वैल्यूएबल होती हैं। उसके बाद इंटरनेशनल एक्सपोजर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत वेरी मिल ट्रू। जाता है। इंटरनेशनल जो एक्सपोजर, जैसा आपने बताया कि आप अभी कई नेशनैलिटी के लोगों के साथ वहां पे आपका इंटरेक्शन होगा, नॉट ओनली साउथ कोरिया बट आई एम वेरी श्योर विद अदर नेशनैलिटीज ऑल्सो, जो इंडिया में एक नो डाउट, चाहे आप आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी दिल्ली कहीं पे बैठे हैं, जैसे मैं जैसे बताऊं, आईआईटी दिल्ली में आई स्पेंड मेनी इयर्स देयर, सो मेरे प्रोफेसर सारे इंडियन थे, स्टूडेंट सारे इंडियन थे। I had no interaction with any of other nationality person. When I went to US and other countries, I realized कि वो interaction अगर आपको ड्यूरिंग पीएचडी वगैरह मिलती है तो उसका अलग एडवांटेज होता है, नो डाउट अबाउट दैट। और बहुत से ऐसे इंडियन स्टूडेंट्स हैं सुजीत, जो क्योंकि इंडिया के अंदर जो पीएचडी का स्कॉलरशिप है वो कम है, इसमें कोई शक नहीं है, तो अगर अच्छा स्कॉलरशिप बाहर मिलता है तो दे कैन हेल्प देयर फैमिलीज आल्सो, एंड देयर सो मेनी इंडियन स्टूडेंट्स हाँ, दोज हु वांट टू हेल्प देयर फैमिलीज। आपको पैसा भी मतलब थोड़ा मनी भी अर्न कर सकते हैं। बाद हम्म। में मैं कई बार लोगों से सुनता हूँ कि यहाँ से भी, मैं जो आईआईटी से वगैरह बच्चे मास्टर्स वगैरह करके आए हैं, पीएचडी यहाँ हम्म। करे, वो भी बोल रहे हैं कि यहाँ जब हम आते हैं ना, तो समझ लो आपको कॉन्फ्रेंस वगैरह करना है, हाँ। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करना है, तो सपोर्ट मिलता है उसमें। हम्म। हाँ, टोटल पीएचडी में आप 3 या 4 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, वो भी फुल्ली बिल्कुल। फंडेड। बिल्कुल, रहना जैसे खाना होटल ट्रेवल सब। टोटल 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 मेरे लैब में जैसे हैं कि चाइना, हम्म। यूएसए और जापान फिक्स है, वहाँ आपको जाके हम्म। कॉन्फ्रेंस करनी है। हम्म। देखो इतना हम्म। मिल जाता है।
जब हम एब्रॉड में होते हैं। हम्म। तो ये मेरे को सुजीत, अब थोड़ा सा आप कोरिया में पीएचडी की बात कर रहे हैं हम, तो लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है एडमिशन से पहले? जैसे सपोज अगर मैं कोरिया के बारे में डिसाइड कर रहा हूँ कि साहब मेरे को अप्लाई करना है, और आपने बड़ा सिंपल सा तरीका बता दिया कि इट इज सिंपल, आई मीन इफ योर रिसर्च इज मैचिंग विद द प्रोफेसर, कैच हिम, मेल हिम, एंड इफ ही इज ओके विद इट, यू आर डन योर जॉब. या So what is South Korean language is required? Is Korean language required to take admission there? And my second question, okay, for admission if it is not required, तो जब मैं कोरिया जाऊं, अभी जैसे आप वहां पे हैं, तो आपको कितनी रिक्वायरमेंट है कोरियन लैंग्वेज की? अभी देखो, जैसे कोरिया में है, एडमिशन के वक्त कोरियन लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है। पर हम्म, कई ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो फ्री में कोरियन लैंग्वेज पढ़ने के लिए आपको फेलोशिप, मतलब फेलोशिप भी नहीं, उस कोर्स में आपको एक कोर्स लेना होता है, उसमें आप कोरियन सीख जाते हो। बहुत तो इजी होता है। पीएचडी में इंडिया में भी होता है, इंडिया में भी मैंने इंग्लिश पढ़ा हुआ है, इंडिया में पीएचडी हाँ, जब करते हैं वो चीज है। तो शुरू में फिर उसमें करते हैं वो. हो एक एक सेम में मैंडेटरी होता है एक कोर्स लेने के लिए। हम्म, उसके बाद क्या हम्म, होता है, समझ लो आप यहाँ की कोरियन की फर्स्ट हम्म, क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास एग्जाम क्वालिफाई किया, तो हम्म, 100% आपको चांसेस हम्म, होती है कि यहाँ के हम्म, हाईटेक कंपनी में जॉब मिले। जैसे ओके. एलजी है, हुंडई है, हम्म, सैमसंग है, हम्म, और भी ऐसी हम्म, फार्मा कंपनी है, दोंगे है। ऐसे हम्म, बहुत कंपनी में जॉब मिलता है, और बहुत हम्म, बच्चे आते हैं, वो कोरियन सीख लेते हैं और यही हम्म, अच्छा सा हम्म, जॉब ले लेते हैं। वो बहुत अच्छी हम्म, चीज़ है, आपको फ्री में कोरियन सिखा रहे हैं, और दिखा रहे बहुत हैं. अच्छा कोरियन सिखाते हैं। और हम्म, जैसे यूनिवर्सिटी में तो इंग्लिश ही चलता है, ऐसा कौन सा हम्म, भी लैंग्वेज बैरियर कुछ नहीं है। हम्म. अच्छा सुजीत, अब मेरे को ये बताओ, कितने टाइम में पीएचडी हो जाता है? मैक्सिमम 4 इयर्स लगते हैं साउथ कोरिया में। तो ओके. हाँ, मैक्सिमम 4 इयर्स लगते हैं। 3.5 इयर्स में भी आप थीसिस सबमिट कर सकते हैं, जो आपका रिसर्च अच्छा हो तो। फिर मैं अपने स्टूडेंट से मिलता हूँ आईआईटीज वगैरह में, पीएचडी फाइनल ईयर, 5वां साल, 6ठा साल, जो भी है, तो उनके दिमाग में एक होता है कि अब इसके बाद क्या, जॉब कहाँ लगेगी? और जब बात आती है जॉब कहाँ लगेगी, तो इंडिया में 80% जो कैंडिडेट्स हैं उनके दिमाग में होता है शायद टीचिंग की जॉब लगेगी, हम्म। इंडस्ट्री में शायद अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. सेम क्वेश्चन आपसे, कि जो पीएचडी होता है, जब आपने कर लिया अच्छे तरीके से, जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्या होती है, क्या इंडस्ट्री में लगती है, कैसे होता है? देखो, जैसे पीएचडी की बात बच्चा क्या करता है, एक तो उसकी पीएचडी से उसका बहुत अच्छा रिसर्च बैकग्राउंड बना होता है, तो उसकी पहली प्रायोरिटी है कि पोस्ट डॉक्टरेट। हम्म, तो साउथ कोरिया की जो डिग्री आपको पोस्ट डॉक्टरेट में बहुत सीधी तरह से मिल जाता है, क्योंकि उनको पता है कि ये पहले से अब्रॉड में रह रहा है बच्चा, और साउथ हम्म, कोरिया में रहा है जहाँ डिसिप्लिन, टाइम टू टाइम आना, प्रोफेसर के हम्म, साथ अच्छा बिहेव करना, और टाइम टू टाइम बच्चे काम करते हैं। इसलिए तो हम्म, साउथ कोरियन पीपल को तो बहुत अच्छे से पोस्ट डॉक्टरेट पोजीशन मिल जाता है। बाद हम्म, में समझ लो आपको उस कंट्री के लैंग्वेज सीख लिया तो उस कंट्री के जॉब भी ले सकते हो, नो डाउट। हम्म, और हम्म, साउथ कोरिया में ऐसा भी है, जब आप पीएचडी करते हो, प्रोफेसर के हम्म, रिकमेंडेशन से आप रिसर्च असिस्टेंट भी बन सकते हैं लैब में। ये ओके. पोजीशन पे आपको मिल सकते हैं। जैसे कम हम्म, इंडस्ट्रीज, R&D बहुत अच्छे से हम्म, मिल जाता है जॉब। जैसे हम जैसे आपने बताया इंडस्ट्री कि अगर सेक्टर आप में जा तीन सकते हैं। जैसे आप 3-4 साल में अगर अगर सपोज कोरियन लैंग्वेज सीख लें, तो यू कैन गेट इन टू द जॉब्स ऑल्सो, क्योंकि कंपनीज श्योर बहुत अच्छी अच्छी है यहाँ पे. श्योर 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 सर, इट इज अच्छा हाईली इसमें, पॉसिबल। ओके. सुजीत, अब जैसे ये आपने बताया कि कोरिया में अगर आप ये सीखते हैं, सब करते हैं, तो क्या कोरिया एज अ कंट्री वेलकमिंग है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए? यह है, बहुत वेलकमिंग है, बहुत पोलाइट है, कुछ रुडनेस वगैरह कुछ नहीं, बहुत अच्छी चीजें चलती हैं यहाँ, बहुत पोलाइट सेफ है, कंट्री है, क्योंकि सेफ है, और इंडियंस के लिए अच्छा है. बहुत सिक्योर कंट्री है, बहुत सिक्योर है। और मैंने इतना देखा है कि सर, कि यहाँ के जो प्रोफेसर है इंडियन बच्चे को बहुत लेना चाहते हैं, क्योंकि इंडियन बच्चे मेहनती होते हैं, लैब में बैठ के काम अच्छे से करते हैं, इनका हम्म, इंग्लिश लैंग्वेज अच्छा होता है, इंग्लिश पे कमांड अच्छे हम्म, होते हैं, तो वो बच्चे काम बहुत अच्छे करते हैं, पेपर अच्छे अच्छे निकालते हैं। और अच्छा. कई बार तो लैब हम्म, के मैनेजर ही बन जाते हैं अच्छा, इंडियंस बच्चे अच्छा. लैब के मैनेजर ही बन जाते हैं। अच्छा, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में सुजीत कुछ बताओ, पीएचडी स्कॉलर की टिपिकल लाइफ कैसी होती है वहां पे, मतलब कितने दिन काम करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा होता है? और देखो, 9 to 6 इट इज टाइम पीरियड फॉर द पीएचडी, एंड सैटरडे संडे आपको छुट्टी होती है यहाँ पीएचडी के लिए। आप 8-9 घंटे काम कर सकते हैं, और कुछ बैरियर नहीं, 24/7 लैब ओपन होते हैं। कैसे काम करने के लिए आप फ्लेक्सिबल हो तो काम भी कर सकते हैं। पर इंडियन लोग करते हैं काम, अच्छा काम हो जाता है लैब में, ऐसा रिस्ट्रिक्शन कोई चीज के लिए नहीं है। ओके, सो दैट एवरीथिंग इज देयर. एवरीथिंग इज देयर सर।
अच्छा, अब सुजीत, वाई, अगर मैं नटशेल में आपसे पूछूं, वाई इंडियन स्टूडेंट शुड थिंक ऑफ साउथ कोरिया? मैं दो तीन चीजें रिकमेंड कर सकता हूँ। देखो, कंट्रीज बहुत है पीएचडी करने के लिए, जैसे हमारे इंडिया भी हैं और कंट्रीज भी हैं, पर कंट्री में सिक्योरिटी होना चाहिए। इस कंट्री में ना गन अलाउड है, ना किसी का कॉलर पकड़ना अलाउड है। भाई पैसा तो मिल सकता है, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है भाई, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी है, बहुत आदमी पोला यहाँ के प्रोफेसर पोलाइट है, रिसर्च ओरिएंटेड है, टाइम टू टाइम रहोगे, टाइम टू टाइम आपको एडजस्ट बॉडी को करोगे, बहुत अच्छा काम यहाँ मिल जाता है, बहुत अच्छे से आप पीएचडी कर सकते हो। फेलोशिप्स है, पूरा फेलोशिप मिल जाता है, थोड़ा पैसा अर्न करके आपको फैमिली को भी बैकबोन रह सकते हो। और सभी से अच्छा सेफेस्ट है भी है। और जॉब, जॉब भी, जैसे जैसे हम अभी देख रहे हैं कॉन्ट्राडिक्शन की, आप डिग्री ले लो, डिग्री ले लो पर जॉब नहीं, ये है अभी देख रहे हैं हम ऐसे, थोड़ा थोड़ा ये हो सकता है, पर यहाँ नहीं है। लैंग्वेज आ सकता है सही। आपको, आ जाने के बाद हो सकता, सभी चीजें होती है स्मूथली। दैट इज आई थिंक दैट इज अ रीजन सुजीत के, जब मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो व्हेन इट कम्स टू सम अदर कंट्रीज दे फील इनसिक्योर के वहां भेजे ना भेजे, हमने ये सुना नहीं हमने वो सर, सुना। नहीं, मैं बट व्हेन अभी इट देख, कम्स टू साउथ कोरिया दे से नहीं, इट्स गुड। यार इंडियन जो लड़कियां हैं रात 2-2 बजे लैब में काम करके सर घर आती हैं, ना कोई सिक्योरिटी का इश्यू है ना कुछ है। बहुत, मतलब मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत सिक्योरिटी के बारे में बहुत अच्छा है, ना टेंशन है आपका। ध्यान लगा के अपना काम करो, अच्छे से रिसर्च करो, पेपर्स अच्छे से लाओ। और यहाँ इंसेंटिव भी बहुत मिलता है। आप समझ लो 1 साल में आपने पेपर निकाला तो बहुत इंसेंटिव मिलता है, प्रोफेसर बहुत ट्रीट करते हैं अच्छे से। लैब पार्टीज हर मंथ होते हैं, हर 2 मंथ में लैब पार्टीज होते हैं, प्रोफेसर अच्छे से बच्चों को लेकर लैब पार्टी, जैसे हम मैं जैसे फेस कर रहा हूँ, लैब पार्टीज होती हैं। पेपर पब्लिश करने के बाद पैसे, एक्स्ट्रा पैसे देते कि ठीक है मेरे बच्चे ने पेपर निकाला, इंसेंटिव दे देते, ऐसा अरे होता है। वंडरफुल, वंडरफुल। चलिए, सो सुजीत, मोर और लेस दिस वाज आवर फर्स्ट इंटरेक्शन सेशन, एंड आई विल यस, रिक्वेस्ट यू सुजीत टू next couple of video sequels we make, in which we tell students more about the या opportunities, because everything cannot be covered in one video. So I request you to make some more such informative videos with me to provide the information to Indian students, एंड स्पेशली खासकर फिर रिसर्च एरियाज में हम आ जाएंगे केमिस्ट्री के। बहुत सा केमिस्ट्री का ऐसा स्टूडेंट है जो कैपेबल है और बाहर जाना चाहता है, एंड आई वांट दैट वी शुड प्रोवाइड देम दिस इंफॉर्मेशन, सो इंफॉर्मेशन। दैट उनको भी वैसी अपॉर्चुनिटीज मिलें जैसे यस आपको सर, मिली। यस सर, श्योर सर, चलो, 100% श्योर सर। थैंक्स अ लॉट बाय बाय सुजीत। सर, थैंक्स सो मच।